السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج فائنلی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب عدالت کے سامنے پیش ہو گئے۔ 48 دن بعد اتنی ساری پیشیوں میں پیش نہ ہونے کے بعد کبھی یہ بات کہ جی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ برآمد ہو جانا ان کے گھر کے باہر سے، ان کے فارم ہاؤس کے باہر سے، اور اس کے بعد ان کی طبیعت کا خراب ہو جانا، اتنا لمبا عرصہ ان کا FIC میں رہنا، آج فائنلی جنرل صاحب پیش ہوئے۔ اور جب پیش ہوئے تو ان کے وکلاء نے وہی ایک بات اٹھا دی کہ جی عدالت کی جورسڈکشن نہیں بنتی، کیونکہ آرمی چیف کے طور پر ایمرجنسی لگائی گئی تھی، اس لیے سویلین کورٹس میں، سویلین عدالتوں میں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہی پٹیشن موجود ہے یہ فیصلہ کرنے کے حوالے سے کہ ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے یا سویلین عدالتوں میں۔ یہ بات ایکسیپٹ بھی کی عدالت نے اور کہا کہ جمعے کو پھر معاملہ ہوگا، فرد جرم نہیں لگائی گئی جنرل صاحب پر۔ کافی سارے باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ جی اب فائنلی ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کو ایک سرونگ سویلین گورنمنٹ کے پرائم منسٹر سے معافی مانگنی پڑے گی، پریزیڈنٹ سے معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ معاملہ عدالتوں کے پاس ہے۔ چاہے کوئی دوست ملک چاہے فوج چاہے میاں نواز شریف صاحب خود چاہے کہ وہ اس وقت ملک سے چلے جائیں، انہیں معافی نہیں مل سکتی، کیونکہ معاملہ عدالت کے پاس ہے۔ لیگل معاملہ سارے طے ہوں گے اور اس کے بعد اگر انہیں معافی دے گی تو وہ سویلین حکومت دے گی۔ دوسری طرف یہ بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ جو لوگ آئین کو نہیں مانتے ان سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان کے سابق آرمی چیف کو اسی آئین کو توڑنے کے الزام میں ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ بھی اس وقت زیر بحث ہے۔ ساری چیزوں پر بات ہوگی۔ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، ابصار عالم صاحب اور احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ جنرل صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے آج عدالت میں فائنلی پیش ہوئے، بات ہوگی۔ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب۔ ابصار عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت شکریہ۔ احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سارا دن آپ میڈیا پر رہے، جنرل صاحب کو ڈیفینڈ کرتے رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ہاشمی صاحب، سر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی جمہوریت کے لیے اور پھر جنرل صاحب کے دور میں جو آپ جیل میں رہے، میں آپ ہی سے شروع کر لیتا ہوں۔ کیا فائنلی جو جمہوریت کی سپریمیسی کی بات کی جاتی تھی، آج اس کا آغاز ہو گیا؟ عدالتوں کے پاس معاملہ ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جنرل صاحب بغیر اس کے جا سکے، آج پیش بھی ہوئے، آغاز ہو گیا؟ دیکھیں، جو باتیں کی جا رہی تھی وہ ساری کی ساری تو غلط ثابت نہیں ہوئی۔ لوگوں کے اندر ایک کیفیت ایسی آ گئی تھی، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایک منی کو ہو گیا ہے۔ جب پرویز مشرف صاحب آ رہے تھے اور پھر وہ ہسپتال کی طرف چلے گئے، تو اس ملک میں جب پہ بہت بڑے کو ہوتے رہے ہیں تو پاکستان کے عوام کے یہ خدشات مبنی بر حقیقت تھے کہ ایک چھوٹا کو تھا۔ اب اس میں ہم جیسے لوگ، ہمیں کوئی یہ بالکل خواہش نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب پھانسی پا جائیں، زندہ نہ رہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور طریقے سے معاملات کو چلانا ہے۔ لیکن جب یہ خبریں پھیلی تو ایک خوف کی کیفیت تھی کہ اگر سول عدالتوں کا اتنی حد تک بات نہیں مانی جا سکی تو پھر سے شروع ہمارا کام وہیں سے ہو جائے گا جو اس ملک کا مقدر بنا ہوا ہے۔ تو اب آج جیسے وہ عدالت میں پیش ہوئے تو اس سے یقیناً عدالتوں کا احترام بڑھے گا عوام کی نظر میں، اور اس ملک میں ایک سویلین بات کو بھی تقویت ملے گی۔ لیکن اس سے ابھی تک یہ تصور کر لینا کہ ہم نے آج سویلین دور کا آغاز کیا ہے، یہ ذرا مشکل ہے۔ اس کے لیے بہت سارے مراحل میں سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ میں تو ان کو آج تک کبھی بھی 12 اکتوبر کا ہو یا بات کا ہو، میں نے کبھی ان کو آج تک اپنی زبان سے صدر نہیں کہا، ہیں بھی نہیں۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، احمد رضا، یہ ایوب خان کو صدر نہیں کہتے تھے، کبھی کہا نہیں انہوں نے۔ تو اس طریقے سے ہم وہ لوگ ہیں جو جد و جہد کرتے رہتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پھر ہمارے اوپر ایک فوجی کیپ پہن کے صدر مملکت آ جاتا ہے، ضیاء الحق کی صورت میں، یحییٰ خان کی صورت میں، جناب پرویز مشرف کی صورت میں۔ تو یہ جو سائے ہیں اس ملک پر
खौफ के, वो अभी दूर नहीं हुए। मैं अफसार साहब कसूरी साहब की तरफ जाने से पहले सर, हालांकि वो जुरिस्डिक्शन का मामला है, कसूरी साहब ने और उनका जो लीगल पैनल है पूरा, वो कि ये अदालत उन्हें ट्रायल कर सकती है या नहीं कर सकती, सिविलियन अदालत, मगर उसके बावजूद आज कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे अब चाहे कोई दोस्त मुल्क चाहे, फौज चाहे या खुद हुकूमत भी चाहे, तो जनरल साहब जा नहीं सकते मुल्क से बाहर। ये एक ड्यू प्रोसेस होगा इस मुल्क में। देखिए, मुल्क से बाहर जाना ना जाना तो एक अलग सवाल है, लेकिन कुछ हुआ है जो आपने कहा, दोनों चीज़ें मैं इनका जवाब देना चाहूँगा। कुछ तो हुआ है, एक स्टेप आगे हम बढ़े हैं, और उनका पेश होना इतने बहानों के बाद, इतने मुख्तलिफ इश्यूज उठाने के बाद, हमें सबसे ज़्यादा हम ये बात करते रहें कि कोर्ट जो है उनके साथ वो इंसाफ करे, और कोई ऐसा ना लगे कि जल्दबाजी में कोई फैसला कर रही है या दबाव डाल रही है फ़ौरन उनको पेश करने पे, और कोर्ट ने वो किया। आम मुल्ज़मों के साथ ऐसा सलूक नहीं होता जो परवेज़ मुशर्रफ साहब को जितनी सहूलियात दी, जितना डिले हुआ उनकी पेशगी में, और बजाय इसके कि अदालत पे बाकायदा बार बार इतराज किया गया, सबने किया, आम मीडिया ने भी किया और वो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने भी किया, लेकिन बहरहाल अदालत ने बड़ा अच्छा ये काम किया। पहली बात तो ये कि उनको वक्त दिया, उनको पूरा हक दिया कि वो अपने जितने भी एवेन्यूज हैं वो इस्तेमाल करें, उनके वकला को भी पूरा टाइम दिया। ये तो एक मेरा ख्याल एक स्टेप आगे हम बढ़े हैं। वो स्टेप के बढ़ने का तरीका जो आपने पहले जमहूरियत वाली बात की है, जावेद हाशमी साहब जो सवाल पूछा है, वो बात मैं समझता हूँ कि हाशमी साहब ने ठीक की है, क्योंकि देखें अभी आज मैं देख रहा था किसी टीवी चैनल पे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब तशरीफ़ लाए हैं अदालत में, तो पूरे दोनों शहरों में तमाम सड़कें सुनसान कर दी गई। 1200 सिपाहियों की ड्यूटी थी, फिर कमांडोज, फिर रेंजर्स, फिर पुलिस, और वो एक एयर कंडीशन बॉम्ब प्रूफ, जो उस गाड़ी की मालियत भी कोई 2-3 घर अगर इस्लामाबाद में शायद उनके बराबर ही होगी, उस गाड़ी में वो तशरीफ़ लाए। लेकिन उसके बरक्स जो मुंतखब वज़राए आज़म थे या मुंतखब लीडर थे, उनको बख्तरबंद गाड़ियों में बंद करके आम जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह अदालतों में पेश किया जाता है। ये दिखाया गया है। तो ये फ़र्क अभी है, और ये फ़र्क कब जाएगा इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इस फ़र्क को लोग नोटिस करते हैं, लोग देखते हैं और लोग सवालात उठा रहे हैं। तो जहाँ तक बाहर जाने की बात है, उनका नाम ECL में है, ECL में से नाम हुकूमत ने निकालना है। अदालत ने मेरे ख्याल उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि वो कहीं जा सकते हैं या नहीं जा सकते। नाम हुकूमत ने उनका ECL पे डाला हुआ है, वो जब तक नहीं निकलेगा वो बाहर नहीं जा सकते। हुकूमत अदालत पे डालती है कि जी अदालत अगर कहेगी तो ECL से बाहर जा सकते हैं, हुकूमत अदालत का कहती है। हाँ, अदालत तब कहेगी ना अगर अदालत के पास कोई जाएगा कि इनका नाम ECL से निकाला जाए, लेकिन ECL पे नाम डालना और निकालना तो ये हुकूमत के इख्तियार में है। तो हुकूमत ने उसको निकाला नहीं। आपको याद है जमानतें हो गई थी पिछले तमाम केसेस में, इस केस से पहले ये जो आर्टिकल 6 के तहत, लेकिन उनका नाम तब भी ECL पे था, इसलिए वो बाहर नहीं जा सके। मैं कसूरी साहब, ये जो दो कंपैरिजन की है अफसार साहब ने, उस पर भी बात कीजिएगा, मगर साथ साथ ये भी कि आए तो सही बहुत अरसे बाद, मगर ये कभी उनके घर के बाहर से बॉम्ब निकल आते थे, कभी उनका हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो ये वाली बात आपने पहले क्यों नहीं रखी कि जी आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये आप पहले ये बात कर देते ताकि ये मामला पहले क्लियर हो जाता और उसके बाद जनरल साहब आ जाते। देखें, जुरिस्डिक्शन का जो मामला है वो आज उठाया गया क्योंकि शेख अकरम बड़ा बाज़िद था और उसने बड़ा एग्रेसिवली आर्गू भी किया कोर्ट को कि जनाब 48 दिन के बाद आए हैं, इन पर चार्ज लगाया जाए। तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि अगर आपने चार्ज लगा दिया तो एक इतना हाई प्रोफाइल आदमी है जिसका कि तमाम दुनिया में उसका पहचान है एज ए स्टेट्समैन एंड ए मिलिट्री जनरल, और 8 साल मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में उसने एक पाकिस्तान को लीड किया है। ये जो चार्ज की जो खबर है ये तमाम दुनिया में फ्लैश करेगी कि साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ पर गद्दारी का चार्ज लग गया। और कल अगर ये आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपको तो इख्तियार ही कोई नहीं, जो हम आर्गू कर रहे हैं, तो इसकी खबर छठे सफ़े पर इतनी सी लोग ये होगी जैसे कि हद तक इज्जत में तो 5 कॉलम की खबर लग जाती है, जो माफी की खबर होती है वो कहीं अंदर दो लाइनों की होती है। तो दैट डैमेज, irreparable damage will be done to a person who has got an international clout, इंटरनेशनली फ्लैश कर जाएगी कि उसको चार्ज लग गया गद्दारी का। लिहाजा हम आपके सामने आर्गू कर रहे हैं कि आप सिविलियन कोर्ट हैं, आप कॉम्पिटेंट नहीं है इसको सुनने के लिए, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 के जो इक़दामात उठाए और स्टेट ऑफ इमरजेंसी को लागू किया, उसके नीचे जो सिग्नेचर हैं
जो जनरल मुशर्रफ के उसके नीचे लिखा हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ही वाज इन यूनिफॉर्म एंड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने इमरजेंसी का नफाज किया। लिहाजा अंडर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 रेड विद उसके साथ पढ़ा जाए तरमीमी उनका ऑर्डिनेंस जो है 1977 का, जिसमें कि आर्टिकल 6 को भी उन्होंने आर्मी मिलिट्री कोर्ट को दे दिया कि मिलिट्री कोर्ट आर्टिकल 6 को भी ट्राई कर सकती है। हमने कहा कि ये फैसला जो हम आर्गू कर रहे हैं, तो कल अगर ये हो कि आपके पास तो आपको तो समात की इजाजत ही नहीं थी, समात की आप में नहीं थी, तो आप डैमेज वुड हैव बीन डन एंड दैट विल बी इररिपरेबल। अदालत ने ये नुक्ता और अदालत ने एक्सेप्ट किया। अदालत ने आपका मैंने टेक अप किया इशू कि यू क्रॉस द ब्रिज। अदालत ने आपका ये नुक्ता बिल्कुल एक्सेप्ट भी किया और जिसकी वजह से आज फर्द जुर्म नहीं भी लगी। दूसरा एतराज है साहब, दूसरा कि सर इतना बख्तरबंद में पेश होते थे साबिक वज़रा आज़म। ये तो अपनी किस्मत है। से पहले किस्मत अपनी अपनी क्या है, हम भी इसी धरती से पैदा हुए हैं। मुझे तो बिख्तर बंद गाड़ी भी नसीब नहीं थी। जेल में था, जो जज था उसको जेल में ले जाके मुझे फर्द जुर्म ऐद की गई। सारा मुकदमा A to Z जेल की उसी चार दीवारी में सुना गया। मुझे बाहर आने का के हवा भी नहीं लगी, वहीं पे मुझे 27 साल कैद हो गई। मैं तो चाहता था मुझे कोई बख्तर बंद गाड़ी में भी बिठा के अदालत तो ले जाए। सही है। हमारी तो अदालतें भी कैद में आ जाती थी। हमारी वो जो नाम बड़ा है, उनके काम बड़े हैं, लेकिन इस धरती का बेटा तो मैं भी हूं ना। देखिए, मैं एज ए नेशनल असेंबली भुट्टो के जमाने में मुझे एज ए मेंबर नेशनल असेंबली मुझे पकड़ा। मैंने बांग्लादेश नामंजूर मूवमेंट को लीड करना था, मुझे पकड़ा और मुझे C कैटेगरी यानी मेरे दाल और रोटी मिलती थी और एक कंबल ऊपर और एक कंबल नीचे। उस कंबल में से रेत जो थी मेरे मुंह में जाती थी। मैंने वहां 1 महीना गुजारा जेल के अंदर। बट इस वक्त वो जो मामला है, बात हो रही है उन्हीं जनरल साहब की जिनके दौर में ये जेल में रहे हैं, और वो उसी से के बाद बता रहे हैं कि उनको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उस पर वो एतराज तो डेमोक्रेटिक जमाने में मैं तो ये भुट्टो के जमाने में बता रहा हूँ। जो मियां साहब के साथ हुआ है, जो हाशमी साहब के साथ हुआ, वैसे बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, आसिफ अली जरदारी के साथ हुआ। नहीं, जरदारी साहब के साथ जो हुआ वो मियां साहब के दौर में हुआ, जिसने भी किया मियां साहब के दौर में मियां साहब ने किया। इसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता ना कि किसी के दौर में हुआ। लोगों का परसेप्शन है। आज मैं जब बाहर निकला तो वहां लोग बहुत नारे मार रहे थे क्योंकि कहा गया कि जनाब कमांडो भाग गया, तो वहां लोग कुछ नारे लगा रहे थे कि कमांडो विच मैदान च आ गया, ये जमा लो। एक बंदे ने मैंने उसको ओवर हियर किया, वो कहता जी शरीफ तो रहेगा, देखना यह कि नवाज रहता है या रहील रहता है। अब ये देखो ना, ये लोगों के परसेप्शन देखिए। अच्छा, आपने वो सारे नारों में यही बात सुनी और इसी पे गौर किया शरीफ तो रहेगा। ये लोगों के परसेप्शन है। सर इंशाल्लाह दोनों शरीफ रहेंगे और एक शरीफ इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहेगा और अपना टेन्योर पूरा करेगा, दूसरा अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेगा और अपना टेन्योर पूरा करेगा। इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे दोनों शरीफ। ये आप मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों का यही तस्वर है, बिल्कुल यही होना चाहिए, लेकिन ये कॉमन मैन का ये तस्वर। देखिए, मैं एक दरखास्त करना चाहूंगा। जाहिर है कसूरी साहब मेरे बुजुर्गों से भी ज्यादा उम्र के हैं, मैं इनकी एहतराम इसी वजह से करता हूं कि उम्र में ज्यादा है। बार बार इस तरह फौज के इदारे को पहले ही हम बहुत गंदा कर चुके हैं सियासत में ला के, और मुसलसल ये परवेज़ मुशर्रफ के वकला की कोशिश रही है कि वो आर्मी की क़यादत को डायरेक्टली भी कहते रहे हैं, जनरल राहील शरीफ का नाम लेके भी कहते रहे हैं। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जनरल राहील शरीफ के जो रगों में खून है ना, वो एक शहीद के रिश्तेदार का खून, उनके भाई का वही खून है जिसने इस मुल्क की धरती को अपना खून दिया और इस धरती को बचाने के लिए खून दिया। मैं नहीं समझता कि इस शख्स, इस तरह के आला ज़ौक़ के शख्स से, आला ख़ानदान के शख्स से आप ये बार बार उनको इस तरह की चीज़ें करें या एक्सपेक्ट करें कि वो आइन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और फौज को, और उसके अलावा जो दूसरे उनके साथी हैं उनको घसीटने की कोशिश करें। एक इदारा अगर बनने, बेहतर होने की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, उसे कोशिश करने दें, उसे अपना काम करने दें। उसको हमने अपना काम नहीं करने दे दिया और सियासतदानों ने भी उनको बहुत बरगलाया है। तो आज हम इस नतीजे इस स्टेज पे पहुंच चुके जहां पे किसी की जान और माल महफूज नहीं है। ईरान हमें धमकियां दे रहा है,
انڈیا ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے, افغانستان ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے. اسی وجہ سے فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت, اسے سرحدوں کی حفاظت کرنے دیں. ایران نے تو بڑی اور ہم جنرل مشرف کو ٹرائی کر رہے ہیں, اور ہم جنرل مشرف کو ٹرائی کر رہے ہیں. آئین کا جو غدار ہے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. یہ دیکھیں نا ان پہ کیا 27 سال کی سزا, کس بات کی سزا دی تھی ان کو, کس بات کی سزا دی تھی پرویز مشرف نے؟ اکبر بگٹی کو کس قصور میں مار دیا تھا؟ بے نظیر بھٹو کی جان سڑک پہ لے لی گئی, کس قصور میں لی گئی؟ یہ لوگ, یہ انسان نہیں ہے, یہ برابر کے انسان, اس ملک کی دھرتی کے بچے نہیں ہیں یہ. ان کو تو جو مرضی کرے, جو آئین توڑ دے 2 دفعہ توڑے, اور اس کو آپ کچھ نہ کہیں کیونکہ وہ جناب بڑا طاقت, کسی دور میں بڑا طاقتور تھا. بات یہ ہے, آرٹیکل 5 میرے اس چھوٹے بھائی نے پڑھا نہیں ہے. آرٹیکل 5 جو کہتا ہے کہ آپ کی جو لائلٹی ہے, وفاداری آئین کے ساتھ, ریاست کے ساتھ ہے, اوبیڈینس جو ہے وہ آئین کے ساتھ ہے. اور اگر کسی وقت ریاست اور جو آئین آمنے سامنے آ جائیں تو کس کا ساتھ دیں گے؟ آپ نے اسی آئین کی گتھیاں سے جولتے جولتے آدھا پاکستان لوز کر دیا. اگر آج پاکستان اس وقت ریاست کو بچا لیتے تو آج 73 کا آئین ڈھاکہ, میمن سنگھ کی چٹاگاؤں میں لاگو ہوتا. لیکن آپ نے آئین تو 73 میں آیا ہے, فال آف ڈھاکہ 71 میں ہو گیا تھا. آئین کو بچاتے بچاتے کہاں ریاست ہو گئی؟ فال آف ڈھاکہ 71 میں ہوا ہے, آئین 73 میں ہے. پوزیشن یہ ہے کہ وہ ڈیبیٹ آئین کی تھی نا جی, وہ ڈیبیٹ تو آئین کی تھی. وہ ڈیبیٹ پاور کی تھی, وہ ڈیبیٹ پاور کی تھی, الیکشن کی تھی, یایا کی غلطیاں, فوج کی غلطیاں. وہ ڈیبیٹ کس کی تھی؟ ایک جس کو ڈیموکریٹک لیڈر کہتے ہیں, وہ اس نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, جو جائے گا ڈھاکے وہ یکساں جب طرفہ ٹکٹ میں. میں واحد آدمی تھا جو اپنے ضمیر کی آواز پر 3 مارچ 1971 کو ڈھاکے گیا, میں پاکستان کی یہ جو اعتراض ہو رہا ہے تاریخ کے ساتھ حاصل پائی. اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف جو آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان سے مذاکرات کی باتیں یہ ساری ڈیموکریٹک فورسز کر رہی ہیں, اور اسی وقت جب فوج اتنا آپریشن میں انوالوڈ ہے اور فوجی جوان کو ڈیمورل, آپ ایک فوجی سابق آرمی چیف کے ٹرائل کی باتیں کر رہے ہیں اسی آئین کو توڑنے پر. جو مانتے نہیں ہیں ان سے مذاکرات کر رہے ہیں, اور ایک فوجی. دیکھیں یہ بڑا اہم کوشچن ہے جو آپ نے کیا ہے. مذاکرات جو ہیں وزیرستان میں یا وہاں طالبان کا, یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو آپ ایک یہ حق دے رہے ہیں مذاکرات ان کے ساتھ. تو وزیرستان میں جنرل اکبر جو تھا رنگروٹ, وہ وہاں 1901 میں لڑ رہا تھا اور برطانیہ والے انہی سے مذاکرات کر رہے تھے. یہ آئین کے رہتے ہوئے آپ پوری دنیا کے اور ممالک کو دیکھ لیں تو وہ مذاکرات اپنے اندر کے ممالک کے جو علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں, آپ اس سے مذاکرات کرتے ہیں. جو نہیں مانتے تو اس کو ان کے خلاف آئین کے مطابق آپ ایکشن بھی لیتے ہیں. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں ان سے مذاکرات کرتے ہوئے آئین کمپرومائز ہو گیا اور یہاں پہ ان کو عدالت میں پیش ہونے سے آئین کے بجائے فوج کی توہین ہو گئی. یہ بات نہیں ہے, آئین وہی رہے گا. اسی آئین کی تابعداری کرتے ہوئے مشرف کا آپ کو کرنا پڑے گا ٹرائل, اور ان کے ساتھ مذاکرات سے وہ نہیں آئیں گے. تو آئین نے تو رہنا ہے, پاکستان نے رہنا ہے, اسٹیٹ نے رہنا ہے. یہ مطلب ان سے وہ اسٹیٹ اپنے شہریوں کا تحفظ کرے گی, مذاکرات کر کے بھی کرے گی, ایکشن لے کے بھی کرے گی. لیکن جب دونوں صورتوں میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ آئین کمپرومائز ہو رہا, نہیں, آئین کی بالادستی کے لیے ہی یہ دونوں کام ہو رہے ہیں. اور یہ دونوں کام اگر سائملٹینیسلی چلیں گے تو یہ آئین کا احترام ہوگا. میں ایک چھوٹی سی اگر آپ اجازت دیں, میں نقطہ قصوری صاحب نے اٹھایا ہے آئین اور ریاست کا. ایک ہمارے ہاں میرا خیال ہے کہ مس پرسیپشن ہے شاید, اور اس مس پرسیپشن کی بنیاد پہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز اس ملک میں آئے ہیں انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے اپنے مقاصد کے لیے, یا شاید انہیں, اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انہیں سمجھ نہیں ہے اس چیز کی کہ آئین اور ریاست میں فرق نہیں ہے کوئی, اس لیے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ میں آئین کو بچاتا یا ریاست کو. آئین اور ریاست ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہیں, یہ بات سمجھنی چاہیے ہم سب کو. آئین اور ریاست ایک ہی چیز کا نام ہے. یہ ملک 1947 میں آزاد ہوا تھا, لیکن یہ ریاست نہیں بنا تھا 1956 تک, جب تک کہ اس ملک کا پہلا آئین نہیں بنا. اس سے پہلے 1956 تک یہ ڈومینین سمجھا جاتا تھا برطانیہ کی. ہمارا آئین تو اس سے اسلامک ریپبلک ایکٹ کے تحت چل رہا تھا. میری بات سنیں, میں نے تو اس بات کا احمد رضا میرا بہت پرانا یہ, لیکن یہ جو یہ
बच्चों वाली ये आइन और मुल्क के, तो मैंने तो जवाब भी दे दिया, आप दे रहे थे आपकी मर्जी। मैं इसलिए दे रहा बहुत पुराने दोस्त ने मगर बात बच्चों नहीं, लेकिन इसलिए कि ये बात जो है ना लोगों के जहनों में ये डाली जाती है। परवेज मुशर्रफ ने अपनी तकरीर में कहा भाई कई दफा मैं आइन को बचाता या रियासत को बचाता, तो लोगों को भी ये समझना चाहिए और जो मिलिट्री टॉप ब्रास है उसको भी ये समझना चाहिए कि आइन और रियासत अलग अलग नहीं है, मैं कुसुरी साहब के एक ही चीज का नाम है। ठीक है, मैं कुसुरी रियासत तभी बचेगी जब ये आइन मैं बचेगा। कुसुरी साहब के सामने मैंने ये मामला भी रखना है और ये भी कि अब क्या मामला जनरल साहब को आखिर में माफी इसी सिविलियन हुकूमत से मांगनी पड़ेगी, इन्हीं सदर से, इन्हीं वजीर आजम से? क्या ये मामला उस तरफ जा रहा है कि अगर अदालतों में फैसला होगा तो जनरल साहब अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तो वो माफी मांगेंगे फिर या नहीं मांगेंगे? एक ब्रेक के बाद प्राइम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। कसूरी साहब आखिर में माफी मांग लेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, सदर साहब से, जनरल मुशर्रफ साहब? अल्लाह से जरूर माफी मांगेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ से क्यों माफी मांगेंगे और सदर से कौन मांगेगा? वो बेचारा ऐसे लगता है जैसे कोई पाल लगाने वाला है। पाकिस्तान के सदर है सर, पाकिस्तान के मुंतखब सदर है मादरत के साथ, मगर सर उसके अलावा मुझे कुछ भी बताइए ना कि अब कोई और चारा क्या है? अदालत में मामला है, आइन तोड़ा गया, जनरल मुशर्रफ साहब ने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया, अगर अदालत कन्विक्ट करती है तो बजाय इसके इन दोनों के अलावा माफ कर नहीं सकता ना? तो आप सवाल खानजादा साहब कह अगर मगर में कर रहे हैं, मैं आपको स्टेट कहता हूं वी आर गोइंग टू विन दिस केस, गवर्नमेंट हैज गॉट नो केस। हम इस केस को बिल्कुल इंशाल्लाह ताला विद आवर प्रोफेशनल कैपेबिलिटी, वी आर द बेस्ट लॉयर्स ऑफ द कंट्री व्हिच आर हैंडलिंग दिस केस, this case we are going to win, and General Musharraf is going to come out of this case with a clean chit, बट जनरल साहब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्होंने आइन तोड़ा था 3 नवंबर को, सियासी तौर पर ड्राई क्लीन होके आएंगे। and let me tell you, in coming months he will be a political force to be recognized in this country. सर बट मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि वो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैंने 3 नवंबर को आइन तोड़ा था, वो कैसे ड्राई क्लीन होके आएंगे? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कैसे कहा थोड़ा 3 या 4 जजेस को यहाँ जो 106 जजेस जो चौधरी इफ्तिखार ने घर भेज दिए विदाउट फॉलोइंग 209, इससे ज्यादा सबवर्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना है कि उसे 106 जजेस, और ये जिन जजेस का ये जिक्र कर रहे हैं कि जिनका पानी बंद, उनके बच्चों का दूध बंद, किसी जज ने या किसी जज की बीवी ने कोई आके पुलिस के पास पर्चा है, किसी ने बयान रिकॉर्ड कराया? दिस ऑल कॉक एंड बुल स्टोरी, दिस ऑल कॉक एंड बुल स्टोरी। ड्राई क्लीन होके निकलने लगे, जरूरत ही नहीं किसी मामले की। ड्राई क्लीन हो ना हो, पहले तो मैं एक बात पे अहमद रजा दोस्त हैं हमारे, ये जो इन्होंने कहा है ममनून हुसैन के बारे में, ये नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह ये आपको सिर्फ ठीक है वो नहीं, मैं अगली बात you made your point, मादरत कर ली उन्होंने, मादरत कर ली, you made your point, छोड़ दी बात, वो बात छोड़ दी। made your point। वैसे ममनून हुसैन को मैं जानता हूँ, पॉलिटिकल वर्कर और उससे अच्छा आदमी, 2 आदमियों में मुकाबला था मेरी पार्टी के जस्टिस वजीरुद्दीन साहब से, लेकिन ममनून हुसैन को मैं जानता हूँ, इतना शानदार आदमी, पॉलिटिकल वर्कर, कमिटेड अपने मामलात के साथ, ये उसके साथ का और निकालना भी मुश्किल होगा। I have no information about him, either good or bad, you know better, you know better, you know better। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर ये बात आपको करनी नहीं चाहिए। and I trust your बट कसूरी साहब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इतनी भारी बात आपको करनी नहीं चाहिए। होगी, आप भी मियां नवाज शरीफ का स्टाइल है ना, जैसे जस्टिस रफीक तारड़ को ले आए, जैसे वो अपना मुंशी जनरल साहब पे बात करना चाह रहा हूँ, मुंशी वो जो था अपना जो चीफ मिनिस्टर था, वो उनका स्टाइल ये है कि दे ब्रिंग दोज पीपल जिनका कोई स्टेचर ना हो। ये जनरल साहब आपका राय अपनी जगह पे उसका एहतराम करते हैं, लेकिन मैं ड्राई क्लीन हो गए जनरल साहब निकलने, वो कह रहे हैं हम केस जीतने वाले हैं। गुलाम हैदर भाई, एक बात मैं पहले कह चुका हूं और आपके सामने दोबारा कहता हूं कि क्लीन हो कि जाए ना जाए, अदालतें सारी मामलात अपनी जगह पे रहेंगे। अभी तक हमारे मुल्क में वो निज़ाम नहीं आया, हम तो उस पर भी शुक्र कर रहे हैं कि चलिए अदालतों के सामने पेश तो हुए, वरना आप ये और तरीकों से कहते हैं अहमद रजा, मैं और तरीके से कहता हूँ कि वो उड़न खटोले में जाएंगे, परियां उठा के ले जाएंगी या कोई
कोई और बात ये है कि यहाँ पे आप अपने मुल्क की तारीख उठा के देख लो। एक गाना भी है वो, एक यहाँ लाएगा, एक लाल परी को यहाँ लाएगा। पे यहाँ ये लाल परी कहाँ से आएगी जनरल साहब के लिए? यहाँ पे सजाएं जो हैं या फांसियाँ वो सिविलियंस के लिए होते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता। मियां नवाज शरीफ ने एक, चूंकि अब ये वाक़या है कि उनको को ले जाने के लिए सऊदी अरब और अमेरिका पीछे थे। ये मैं कर रहा हूँ जो मैं जिसका चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद वो दोस्त है, मगर साथ साथ माफी भी थी ना। मैं क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये नहीं, वो जाएं बेशक, मगर माफी के बगैर कैसे जाएंगे? अगर माफी में जो मियां नवाज शरीफ साहब जो है, वो रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, माफी का मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। बात ये है कि अब जो है वो लोग अगर कहेंगे मियां साहब से कि आपको हम कहाँ से उठा के ले गए थे, तो ये पाकिस्तान का सदर जब बन जाता है आदमी तो बैनुल-अक़वामी हैसियत हो जाती है, उनके काम आता है, वो हमारे काम आते हैं। मुल्कों की जो आपकी एक सियासत है वो आगे चलती है। वो अब मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं सियासत से उस तरीके से नहीं हूँ, लेकिन सऊद फैसल और मैं कई कॉन्फ्रेंसेस में इकट्ठे गए, तो उसका ताल्लुक जो है, मैं तो एक काश्तकार हूँ, मेरा क्या उनसे ताल्लुक होना था। परवेज मुशर्रफ की खूबियाँ नहीं हैं, लेकिन उसको एक मौका एक्सपोजर का मिला है और उसकी वजह से, पाकिस्तान की वजह से उन्होंने एहसानात भी किए हैं। तो ये जो इंटरनेशनल आपके कनेक्शंस हैं वो उनको मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मालूमात नहीं है मेरी, मैं सियासत का एक तालिब इल्म को होने की हैसियत से कह देता हूँ, जो अदालत फैसले तक जाएगी या नहीं जाएगी उसमें से भी रास्ते निकाल लिए। मतलब नुकता ये, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो जाएंगे, मगर नुकता ये है अदालती पूरा प्रोसेस होने के बाद और उसके बाद जो हमारा एक लीगल प्रोसेस है कि अगर आपको माफी चाहिए तो सदर, वजीर आजम उसके बगैर चले जाएंगे आपके ख्याल में? मैं आपसे कहूँ, तो अगर एक तरीका मैं बता देता हूँ, मिलिट्री कोर्ट का मुकदमा चला जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस मुल्क में जो That's the one way out. Military court is a one way out for General Musharraf. Well, उसी मतलब कि आपके सामने NLC के में जनरल्स जो गए, आज 3-3 साल हो गए हैं, जिनको after their retirement they were re-inducted in the army and उनको मिलिट्री कोर्ट में ले गए। That is not something to be proud of, sir. This is something to be ashamed of. के अलावा ये सबक है तमाम कौम के लिए। फौज ने वादा किया, जनरल कियानी साहब ने वादा किया कि मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा, सिविलियन एक्शन ना लें, और वो वादा पूरा नहीं हुआ। इसीलिए सबक है कि आइंदा ऐसा कोई वाकया नहीं होना चाहिए कि अगर रिटायर्ड जनरल सिविलियन कोर्ट के सामने आता है तो वापस मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाए, क्योंकि वादा पूरा नहीं हुआ पहले, इसलिए सिविलियन कोर्ट से उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मुझे सवाल किया कि आपको इसके बारे में क्या, देखिए हम लॉयर जो होते हैं हम तो नजीर इसी प्रेसिडेंट पर काम करते हैं, तो प्रेसिडेंट मैं तो प्रेसिडेंट ये है तो अदालतों को भेजना नहीं चाहिए मिलिट्री कोर्ट में। उसके बारे में मैं ना उसके अच्छे तासरात की बुनियाद पर बात करना बुरे, मैं तो एक फैक्ट की बुजुर्ग तो फैक्ट यही है। तो फिर अफसार साहब ये जमहूरियत की मजबूती और अनप्रेसिडेंटेड काम होना एक ही तरफ रखे, फैक्ट जो उन्होंने एड्रेस किया है, और जनरल कियानी साहब के वादे के बाद जो 3 जनरलों का हुआ कुछ नहीं हुआ ना, तो फिर यही होना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने एक लफ्ज बोला, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ इट, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। और मैं भी समझता हूँ कौम के तौर पे हमें भी शर्म आनी चाहिए कि हमारी कौम अगर किसी ताकतवर को सजा देने का हौसला नहीं रखती और कमज़ोर को देती है। मैं यहाँ पे हमारी जहनीत ये है, मतलब अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के कह रहा हूँ कि हम किसी गरीब को या मिडिल क्लास के बंदे को किसी हाई पोस्ट पे जाते हुए देख के उस पर हम तानो तशनी शुरू कर देते हैं, हम उस पर मज़ाक उड़ाते हैं। जो अभी कसूरी साहब ने पहले ममनून हुसैन साहब की बात पे माफ़ी मांगी, फिर हैदर वाई साहब जो फौत हुए उन्हें मेरा ख्याल 10 साल हो गए, उनको मुंशी कह दिया। अगर अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में ये मिसालें होती ना, तो वहाँ लोग फ़ख्र महसूस करते कि हमारा मुआशरा इतना मुनसिफ है कि एक गरीब आम आदमी का बेटा भी किस लेवल तक जा सकता है। हमारे यहाँ हम इस्लाम के फॉलोअर हैं, अपने रसूल के फॉलोअर हैं, जिनकी मुखालफत मक्का के तमाम नवाबों ने और तमाम वहाँ के जितने भी वो
امیر طبقہ تھا उसने की और गरीब उनके साथ खड़े हुए और वही अल्लाह के प्यारे भी थे। हम यहाँ गरीब कोई तरक्की कर जाए हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। नहीं, कसूरी साहब का नुकता दूसरा, कसूरी साहब कह रहे हैं मियां साहब इसलिए लाते हैं ताकि वो कमजोर हो और मेरे आगे ना खड़ा है। कसूरी साहब का नुकता, ये बात नहीं है। कसूरी साहब का नुकता ये है कि मियां साहब इस बंदा लेके आते उनकी साइकी में है, वो उनकी साइकी में, वो उनकी आदत है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। ये कोई बात नहीं, मियां साहब के अपने वालिद साहब बहुत छोटे लेवल से ऊपर गए, ये ना कहना अच्छा, ऐसी मगर बात नहीं है। मैं चाह रहा हूं मैं प्रोग्राम के मैनेजर एक नुक्ते पे आ जाऊं। मुशर्रफ साहब जब आए थे ना, कसूरी साहब ने कह दिया दैट्स अ वे आउट, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, दैट्स अ वे मैं आउट। बात पूरी कर लूं उसका जवाब देता हूं। परवेज मुशर्रफ साहब जब आए थे ना, उनके बारे में लोगों ने यही कहा क्लर्क का बेटा है, ऐसी बातें वो जेब नहीं देती। जनरल कियानी साहब आए, उनके बारे में कहा जी कि इनके वालिद साहब तो बहुत छोटे ऑफिसर थे फौज में। तो ये हमें इस पे फख्र महसूस करना चाहिए कि हमारे इदारे, हमारा मुआशरा अभी भी उसमें इतना इंसाफ है कि वो एक गरीब आदमी को या मिडिल क्लास को भी ऊपर आने का मौका दे देता है। आजादी का समर है ये, आजादी का समर। बिल्कुल ये कह रहा हूं, इस पे फख्र महसूस करना चाहिए, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं तो उनकी साइकी बता रहा हूं। जुरिस्डिक्शन वाला मामला मिलिट्री कोर्ट में अगर चला गया तो खुद कसूरी साहब कह रहे हैं दैट्स अ वे आउट। ये तो देखें, ये कसूरी साहब ने जावेद हाशमी को क्यों नहीं मियां नवाज शरीफ आगे लाया? ये सवाल ये कसूरी साहब ने दलील अपने हाशमी साहब थे नहीं उस वक्त पीएमएलएन में जब मियां साहब की हुकूमत आई है। ये कसूरी साहब ने पहले भी रही है ना कि मिलिट्री कोर्ट वे आउट होगा, इससे मिलिट्री कोर्ट की जितनी क्रेडिबिलिटी कोई थी वो भी खत्म हो गई है। और ये दलील कसूरी साहब के अपने खिलाफ जाएगी अदालत में, क्योंकि इन्होंने ये खुद कह दिया है कि मिलिट्री कोर्ट में जाने का मतलब है कि उनको बाहर का रास्ता मिल जाएगा, मतलब मिलिट्री कोर्ट तो उन्हें एग्जॉनरेट कर। कसूरी साहब खुद भी कहें, कसूरी साहब खुद भी कहें, अगर वो एक कानून अगर ये कहता है कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है तो उसके बाद वो तो आर्ग्यू कोर्ट ने फैसला करना है ना। उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक तरफ ये कहती है कि मिलिट्री कोर्ट में होगा, दूसरी तरफ ये कहती है आर्टिकल 6 मिलिट्री कोर्ट के अंदर आ नहीं सकता। ये मिलिट्री एक्ट जो आपका नॉलेज थोड़ा कमजोर है, ये थोड़ा कमजोर है। आप जो अमेंडमेंट है आर्मी एक्ट की 1977 की, उसमें पढ़िए, उसमें आर्टिकल 6 का तस्करा दिया गया है। ये अमेंडमेंट ये देख के की गई थी कि आइंदा भी हमारे जो जर्नल आएंगे वो आइन तोड़ते रहेंगे। तो मैं तो लॉ की I'm a student of law, मैं तो लॉ दरवाजा खोल दिया गया है। इसमें फैसला अदालत ने करना है। लेकिन जहां तक है कि ड्राई क्लीन करने का ये प्रोसेस शुरू हो रहा है, मेरा ख्याल है ये अदालत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को साबित करे कि वो कोई ड्राई क्लीनिंग मशीन नहीं है। वो इंसाफ देने के लिए बैठी है वहां अदालत, जो स्पेशल कोर्ट है, और वो इस मसले को कंक्लूजन तक लेके जाए उसी तरह जिस तरह वो कमजोर लोगों को सजा देती है, वो एक ताकतवर शख्स को भी सजा दे, इंसाफ के साथ दे, जल्दबाजी ना करे, कोई उसमें ऐसा पहलू ना रह जाए तशनगी का, वो पूरा करें और अपना पूरा अमल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी ये कैसे जाएगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कैसे जाएगा। अगर ये मिलिट्री कोर्ट में चला गया तो आपका काम खत्म सर, वो तो खत्म हुआ, फिर आपका भी काम खत्म। फिर आपने इसका मतलब है ड्राई क्लीन का प्रोसेस शुरू हो गया सर, मिलिट्री कोर्ट में चले गए। मिलिट्री कोर्ट में तो मिलिट्री का फैसला किसी सिविलियन कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। क्या मिलिट्री, लेकिन यहाँ एक सवाल है, मिलिट्री